Hello everyone, in today's video we are going to do the MCQs of Economics, CA Foundation, Nature and Scope of Business Economics Unit 1. So let's get started. We are going to cover Unit 1 as well as Unit 2 both. So first MCQ is human wants have unlimited wants and the means are relatively scarce form. So इसका जो आंसर होएगा वो क्या होएगा, ये क्या फॉर्म करता है, सब्जेक्ट मैटर ऑफ economics. So option number C would be the correct answer for this particular question. Next is economics is not just deals with how a nation allocates its scarce resources, but deals with dash by productive capacity of resources can be increased. So the correct answer for this would be processes. Alright, next is the term economics, Greek word oikonomia. Okay, next question is oikonomia means household. Alright, next question is economics is the study of dash in the ordinary business of life. So this would be economics is the study of dash in the ordinary business of life. Mankind would be the correct answer. नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं. सो नेक्स्ट क्वेश्चन पे हम चलते हैं. तो नेक्स्ट क्वेश्चन हमें क्या बोल रहा है, द मीनिंग ऑफ ग्रीक वर्ड ओइको एंड नोमोज मीन्स. सो अभी मैंने आप लोगों को बताया था कि हाउस होल्ड होता है इसका मतलब. सो हाउस होल्ड. ऑलराइट, सो ऑप्शन नंबर सी वुड बी दी करेक्ट आंसर. नेक्स्ट इज इकोनॉमिक्स इज कॉल्ड डैश ऑफ सोशल साइंसेज. सो इकोनॉमिक्स क्या होता है, ब्रांच ऑफ सोशल साइंस होता है. Who is the father of economics? So the answer is Adam Smith obviously. Alright, next question पे हम लोग चलते हैं. So Adam Smith is the correct answer. Next question है हमारे पास में, economics is the study of how society manages its unlimited resources, how to reduce our wants until we are satisfied, how society manages its scarce resources. So the correct answer will be how society manages its scarce resources. नेक्स्ट क्वेश्चन पे हम देख लेते हैं क्या बोल रहा है. ऑपरेशन रिसर्च स्टार्ट्स मैथमेटिक्स एंड थ्योरी ऑफ डिसीजन मेकिंग हैज़ क्लोज कनेक्शन विथ. किससे क्लोज कनेक्शन है, किस चीज़ से इसका क्लोज कनेक्शन है. सो ऑफकोर्स बिजनेस इकोनॉमिक्स. राइट, सो बिजनेस इकोनॉमिक्स. नेक्स्ट, economics provides certain dash which can be used, obviously principles. Right, next question is over here. Right, 12th question, the professor dash has defined the concept of business economics. So you all know Joel Dean defines it. Then application of quantitative technique like linear programming and capital budgeting, even analysis are the components of dash economics. So they all are the components of business economics. Next is business economics implies dash the combination of manufacturing activity and applied economics, combination of business and trading, combination of business and profit, या फिर all of the above. So the correct answer for this would be all of the above. Next is business economics is abstract and applies the tools of microeconomics. Then practical application of economic theory in business decision making, incorporate tools from multiple decisions. So obviously both B and C would be the correct answer. Then which one is not within the scope of business economics, कौन सा इनके स्कोप में नहीं है. सो इसका करेक्ट आंसर क्या होगा, देखो, कैपिटल बजटिंग, रिस्क एनालिसिस, बिजनेस साइकिल एंड अकाउंट स्टैंडर्ड्स. सो ऑब्वियसली अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स इसके स्कोप में नहीं है, तो हमारा जो आंसर हो जाएगा वो क्या हो जाएगा, अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स. नेक्स्ट है बिजनेस इकोनॉमिक्स इज डैश. बिजनेस इकोनॉमिक्स इज डैश एज इट डील्स विद बोथ quantitative and practical application for attainment of set of objectives. So this is both science as well as art. So option number A would be the correct answer, option number A. Next is
Business economics is branch of general economics comprising pure economics, combination of consumption and production units. So both B and C would be the correct answer. Business economics comprises of microeconomic in nature, quantitative analysis, pragmatic in nature, all of the above. So यहाँ pragmatic होता है, quantitative analysis भी होता है, microeconomic in nature भी होता है. अभी हमने ऊपर किया था ये MCQ, कुछ ऐसा ही MCQ हमने किया था. इसमें हमने बोला था कि कहाँ पे गया, एक सेकेंड, हाँ ये रहा. सो pragmatic नेचर में होता है, ठीक है. क्वांटिटेटिव एनालिसिस भी ये करता है और माइक्रो इकोनॉमिक इन नेचर भी होता है. तो ये ऑल ऑफ दी अबव इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, यानी ऑप्शन नंबर डी. ऑलराइट, नेक्स्ट इज स्कार्सिटी ऑफ रिसोर्सेज मीन्स. तो स्कार्सिटी ऑफ रिसोर्सेज मीन्स क्या होता है? नॉन एग्जिस्टेंस ऑफ रिसोर्सेज या फिर लिमिटेड रिसोर्सेज. तो इसका करेक्ट आंसर क्या होएगा? दोनों ही हो सकता है, या तो एग्जिस्टेंस में नहीं है रिसोर्सेज या फिर बहुत ज़्यादा लिमिटेड है, इसलिए स्कार्सिटी हो रही है. तो ऑप्शन नंबर सी इज द करेक्ट आंसर. नेक्स्ट इज द लॉ ऑफ स्कार्सिटी डज नॉट अप्लाई टू रिच डेवलप्ड कंट्रीज. फॉल्स है ये तो, क्योंकि लॉ ऑफ स्कार्सिटी हर जगह अप्लाई होता है. अप्लाइज ओनली टू दी लेस डेवलप्ड कंट्रीज, ये भी फॉल्स है. इम्प्लाइज दैट कस्टमर्स वांट या फिर कंज्यूमर्स वांट will be satisfied in a socialistic system, या फिर implies that consumer wants will never be completely satisfied. So of course option number D will be the correct answer, which is the implies that the consumer wants will never be completely satisfied. Next is business economics is dash in approach. So business economics कैसा होता है अप्रोच के अंदर? पॉजिटिव होता है, इंडक्टिव होता है, रियलिस्टिक होता है या प्रेगमेटिक होता है? तो अभी हमने ऊपर किया था प्रेगमेटिक होता है, तो हमारा ऑप्शन नंबर डी करेक्ट आंसर हो जाएगा. बिजनेस इकोनॉमिक्स इज डैश इन नेचर एज इट इनकॉर्पोरेट्स टूल्स फ्रॉम अदर. अच्छा, तो मतलब इसमें मल्टीपल जो है डिफरेंट टाइप्स ऑफ चीज़ की बात हुई है, तो यहाँ पे जो है इसका करेक्ट आंसर इंटरडिसिप्लिनरी हो जाएगा. नेक्स्ट है डिमांड एनालिसिस, फोरकास्टिंग, प्रोडक्शन एंड कॉस्ट एनालिसिस, इन्वेंट्री मैनेजमेंट डैश इकोनॉमिक्स अप्लाई टू दी ऑपरेशनल और इंटरनल इशूज़. सो ऑपरेशनल और इंटरनल इश्यूज़ के लिए हमेशा ही कौन सा होता है? माइक्रो इकोनॉमिक्स अप्लाई होता है. नेक्स्ट देख लेते हैं वर्क इन प्रोग्रेस, रॉ मटेरियल, फिनिश गुड्स आर दी फॉर्म ऑफ ऑब्वियसली इन्वेंट्री मैनेजमेंट. नेक्स्ट इज इन्वायरमेंटल फैक्टर्स आर अ पार्ट ऑफ. इन्वायरमेंटल फैक्टर्स किसके पार्ट है? माइक्रो के है, मैक्रो के है, प्योर है या नन है? सो ऑफकोर्स माइक्रो और प्योर तो होगा नहीं, नन भी नहीं होगा, माइक्रो या मैक्रो में से कुछ होगा. सो जो एनवायरमेंटल जो होती है फैक्टर्स वो आउटसाइड फैक्टर्स होते हैं, इसलिए इसका आंसर क्या हो जाएगा? मैक्रो. ऑलराइट, नेक्स्ट देख लेते हैं द सेंट्रल इकोनॉमिक प्रॉब्लम इज. सेंट्रल इकोनॉमिक प्रॉब्लम क्या है? व्हाट टू प्रोड्यूस, हाउ टू प्रोड्यूस, फॉर whom टू प्रोड्यूस. सो ये तीनों ही है, यानी ऑल ऑफ दी अबव. थ्योरी ऑफ कैपिटल एंड इन्वेस्टमेंट डिसीजंस, रिस्क एंड अनसर्टेनिटी आर पार्ट्स ऑफ dash economics applied to operational issues. So operational issues पे ये अप्लाई हो रही है, राइट. तो इसका क्या होगा? अभी तो हमने पढ़ा था जो ऑपरेशनल इश्यूज पे अप्लाई होगा वो क्या होगा? माइक्रो होगा, राइट. नेक्स्ट देखते हैं द सेंट्रल प्रॉब्लम इन इकोनॉमिक्स इज दैट ऑफ. क्या है सेंट्रल प्रॉब्लम? So allocating the scarce resources in such a manner that society's unlimited needs are satisfied as well possible. So ऑप्शन नंबर डी हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक है. नेक्स्ट इज माइक्रो इकोनॉमिक्स इज कनेक्टेड विथ. माइक्रो इकोनॉमिक्स किससे कनेक्टेड है? कंज्यूमर बिहेवियर से, फैक्टर प्राइसिंग से, प्रोडक्ट प्राइसिंग से, या फिर ऑल ऑफ दी अबव. सो ऑल ऑफ दीज इज द करेक्ट आंसर. When we are studying how a producer fixes prices of products we deal with. So इसका माइक्रो इकोनॉमिक्स ऑफ कोर्स, ठीक है. Then right of private property is found in. प्राइवेट प्रॉपर्टी की राइट किस में होती है? कैपिटलिज्म में होती है. सो ऑफ कोर्स बी, राइट. कहाँ गया? ये रहा. नेक्स्ट, which of the following is a study of particular unit rather than all unit combined? So of course microeconomics. Then which of the following refers to the microeconomics aspect from a national angle? So microeconomics aspect from a national level is capital output ratio in steel industry. ये भी होती है, सॉरी माइक्रो बोला है. ऑलराइट, तो कैपिटल आउटपुट रेशियो इन स्टील इंडस्ट्री नहीं होगा, पर कैपिटा इनकम नहीं होगा,
इनकम फ्रॉम दी रेलवेज आपका हो सकता है, सो ऑप्शन सी हमारा करेक्ट हो जाएगा। स्टेट विच रेफर्स टू दी माइक्रो इकोनॉमिक अप्रोच ऑफ द नेशनल इनकम, so distribution of coal in the country, lockout in the airline, inflation in the economy, या फिर unemployment among the educated people, so obviously lockout in the Indian airline हो जाएगा। then which of the following falls under the microeconomics, microeconomics के नीचे क्या आता है? फैक्टर प्राइसिंग, नेशनल इनकम, जनरल प्राइस लेवल या नेशनल सेविंग एंड इन्वेस्टमेंट, सो फैक्टर प्राइसिंग। Alright, so factor pricing will be correct answer. Then price theory is also known as normative economics. Then macroeconomics is the study of all aspect of scarcity, right? When we study why saving rates are high or low, we are studying when we study why saving rate are high or low, so we are studying, so of course macroeconomics हम स्टडी कर रहे होते हैं, राइट। आइडेंटिफाई द करेक्ट स्टेटमेंट, सो मुझे जैसा कि दिख रहा है यहाँ पे इंटरडिपेंडेंट वाली स्टेटमेंट करेक्ट है, सो ऑफ कोर्स माइक्रो एंड मैक्रो इकोनॉमिक्स आर इंटरडिपेंडेंट, सो ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर। देन इकोनॉमिक्स कंसिडर्ड विद द वेलफेयर propositions, so socialist economy है ना। then example of positive economics analysis would be, so देखते हैं और analysis of relationship between the price of food and quantity, determining how much, determining the fare, deciding, so इन सब में डिसाइड हो रहा है लेकिन ऊपर एनालाइज हो रहा है, सो इसलिए पॉजिटिव इकोनॉमिक एनालिसिस क्या हो जाएगा, ए ऑप्शन वाला हो जाएगा। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है इकोनॉमिक्स इज अ पॉजिटिव साइंस शुड बी बिटवीन एंड्स, और क्या ऑप्शंस दिए हुए हैं हमें, यूनिक, न्यूट्रल, सोशली रिस्पॉन्सिबल या फिर इंस्पायरिंग, सो हमारा न्यूट्रल यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा। देन नॉर्मेटिव एस्पेक्ट किसने दिया था, मार्शल ने। देन विच ऑफ द फॉलोइंग इज द एग्जाम्पल ऑफ नॉर्मेटिव इकोनॉमी, नॉर्मेटिव वो होती है जिसमें वो शुड आता है, तो ऑफ कोर्स सब में शुड आ रहा है या फिर ऑट टू आ रहा है, तो फिर ऑल ऑफ दी अबव। देन अगेन नेक्स्ट क्वेश्चन है नॉर्मेटिव एस्पेक्ट, ये रिपीट हो गया, छोड़ो इसको। देन सोशल इंश्योरेंस, सिकनेस बेनिफिट्स, ओल्ड एज पेंशन आर सम सोशल बेनिफिट्स प्रोवाइडेड बाय, कौन प्रोवाइड करता है, सोशलिस्ट इकनॉमी, कैपिटलिस्ट इकनॉमी या फिर मिक्स्ड इकनॉमी या फिर दोनों, सो ऑफ कोर्स दोनों। Then which of the following is normative, so should आ रहा है C में, so of course C. Then the difference between positive and normative economics is, positive economics explain the performance of the economy while normative economics find out the reasons for the poor performance. Positive economics describe the fact while normative involves whether some of these are good or bad, नहीं। normative economics describe the fact, नहीं। पॉजिटिव इकोनॉमिक्स प्रिस्क्राइब्स वाइल नॉर्मेटिव इकोनॉमिक्स डिस्क्राइब, सो यहाँ पे जो है ये भी उल्टा दिया हुआ है, अगर इसमें होता पॉजिटिव इकोनॉमिक्स डिस्क्राइब एंड नॉर्मेटिव इकोनॉमिक्स प्रिस्क्राइब, तो ये हमारा करेक्ट आंसर हो जाता है यहाँ पे, लेकिन ऑप्शन नंबर ए इज द करेक्ट आंसर हो जाएगा। देन एक्सप्लॉयटेशन एंड इनइक्वालिटी आर मिनिमल अंडर, एक्सप्लॉयटेशन और इनइक्वालिटी किसके अंदर सबसे कम होती है, तो मिक्स्ड इकोनॉमी में से कम होती है। देन हु गिव्स द पॉजिटिव एस्पेक्ट ऑफ साइंस, तो ये अभी रिपीट हुआ है, हमने पढ़ लिया था ऊपर। देन इनइक्वालिटी ऑफ इनकम डज नॉट परपेचुएट इन, इनइक्वालिटी ऑफ इनकम कहाँ पे नहीं होती है, सबको सोशलिज्म में नहीं होती है, सॉरी यहाँ पे मैंने 50 वाला जो क्वेश्चन है इसके अंदर एक्सप्लॉयटेशन एंड इनइक्वालिटी आर मिनिमल अंडर, ये भी सोशलिज्म में होती है, मिक्स इकोनॉमी में सबसे कम नहीं होती है, कम होती है एज कम्पेयर टू कैपिटलिज्म, बट सबसे कम नहीं होती है। एंड इनइक्वालिटी ऑफ इनकम भी सबसे जो क्या बोल रहा है, इनइक्वालिटी ऑफ इनकम डज नॉट परपेचुएट इन, किसके अंदर नहीं होती है, तो सोशलिज्म में नहीं होती है। देन इन विच इकोनॉमिक सिस्टम ऑल मीन्स ऑफ प्रोडक्शन आर ओन्ड एंड कंट्रोल्ड बाय प्राइवेट इंडिविजुअल्स फॉर प्रॉफिट, सो ऑब्वियसली कैपिटलिज्म। देन फ्रीडम ऑफ चॉइस इज द एडवांटेज ऑफ, ये आप लोगों को बताएंगे कमेंट सेक्शन में। देन उसके बाद में इन विच टाइप ऑफ इकोनॉमी डू कंज्यूमर्स एंड द प्रोड्यूसर्स मेक देयर चॉइसेस बेस्ड ऑन द मार्केट फोर्सेस ऑफ डिमांड एंड सप्लाई, सो ये सबसे ईजी क्वेश्चन है,
ये दोनों क्वेश्चन 54 एंड 55 आप लोग दोनों कमेंट सेक्शन में बताएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इन अ फ्री मार्केट इकोनॉमी when the consumers increase their purchase of the goods and the level of dash exceeds the dash then price tend to rise। तो जब हमारी डिमांड एक्सीड कर जाती है सप्लाई को, तो ऑब्वियसली तब हमारी प्राइस राइज होती है। सो फर्स्ट में डिमांड आएगा, सेकंड में सप्लाई आएगा। सो यहाँ पे इसमें कोई ऑप्शन नहीं है, तो यहाँ पे मिस्टेक हो गई होगी। सो यहाँ पे जो ऑप्शन आएगा वो आएगा डिमांड कॉमा सप्लाई। नेक्स्ट है हमारा, अ फ्री मार्केट इकोनॉमी सॉल्व्स इट्स सेंट्रल प्रॉब्लम्स थ्रू। फ्री मार्केट इकोनॉमी कैसे सॉल्व करती है? तो वो करती है मार्केट मैकेनिज्म से। देन वी फाइंड आउट दी करेक्ट स्टेटमेंट। कौन सी इसमें से करेक्ट स्टेटमेंट है? तो सबसे पहली है हमारी, एक सेकेंड वेट, हाँ, हायर द प्राइजेज द लोअर द क्वांटिटी डिमांडेड इज द लो नॉर्मेटिव स्टेटमेंट। तो ये तो गलत हो गई, ठीक है, ये तो गलत हो गई। देन माइक्रो एंड मैक्रो इकोनॉमिक्स आर इंटरडिपेंडेंट टू ईच अदर, ये सही है, तो ये हो जाएगा हमारा करेक्ट आंसर, ऑप्शन नंबर बी ऑफ कोर्स। तो या ऑप्शन नंबर बी हमारा करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास में कि अंडर कंट्रोल्ड इकोनॉमी स्टेट प्लेज अ मेजर रोल, सेंट्रल अथॉरिटी डिसाइड हाउ मच विल बी प्रोड्यूस्ड। सो यहाँ पे क्या होता है, या कंट्रोल इकोनॉमी में दोनों ही होते हैं, ठीक है, दोनों ही होते हैं। फर्स्टली आई वॉज कन्फ्यूज दैट इट्स कंट्रोल इकोनॉमी और कैपिटलिस्ट इकोनॉमी, but there was no option for consumer free market, like जो कैपिटलिस्ट इकोनॉमी होती है उसको मार्केट जो है वो कंट्रोल नहीं करती है, तो ऐसा कुछ ऑप्शन दिखा नहीं, तो फिर मैंने दोबारा पढ़ा तो कंट्रोल इकोनॉमी था। सो दिस वाज अ कंफ्यूजन, राइट। नेक्स्ट क्वेश्चन, मिक्स्ड इकोनॉमी ऑल इकोनॉमिक डिसीजंस आर टेकन बाय सेंट्रल अथॉरिटी, फॉल्स। ऑल इकोनॉमिक स्टेट, नहीं ये भी नहीं होगा, ना सेंट्रल ना प्राइवेट, दोनों का मिक्स डिसीजन होता है। सो या दिस इज पार्टली बाय प्राइवेट एंड ऑल्सो बाय स्टेट। सो ऑप्शन नंबर सी हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो आज के लिए हमारे जो क्वेश्चन है वो यहाँ पे ओवर होते हैं। आई होप आप लोगों को वीडियो पसंद आई होगी, ठीक है। एंड हमने टोटल 60 क्वेश्चन हमने यहाँ पे कवर अप किए हैं, 60 MCQ फ्रॉम द यूनिट नंबर 1। So yeah, that's all for today. Hope you liked it. Please like, share, subscribe. Meet you in the next video. Till then, goodbye and take care.